Hello everyone, welcome to our channel MI Tutorial Classes. Through this channel, we can prepare all teaching competitive exams like UP TET, Haryana TET, MP TET, Bihar TET, C TET, Super TET, etc. So guys, today we will study about English. Our first topic is English teaching is sentence. Firstly, we will know what is sentence. A group of words that express a sentence, questions, command और wish is called sentence. कहने का मतलब है कि शब्दों का एक समूह जो किसी कथन, प्रश्न, आदेश या इच्छा को अभिव्यक्त करे उसे हम वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं. A complete sentence has three characteristics. First, it begins with a capital letter. In additions, it includes an and marks, a period, full stop, question marks or exclamation marks. Most importantly, the complete sentence must contain at least one main clause. यानी कि गाइस सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमेशा कैपिटल लेटर से होती है. सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का प्रयोग किया जाता है और हमारे कंप्लीट सेंटेंस में कम से कम एक मेन क्लोज होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस. A sentence which expresses a general statement which is about any facts is known as declarative sentence. The structure of declarative sentence is subject plus verb plus object. For example, he goes to school. In this sentence, he is a subject, goes is a verb and स्कूल इज अ ऑब्जेक्ट. इस तरह कर्ता, क्रिया व कर्म मिलकर एक संपूर्ण वाक्य बनाते हैं. इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस में या तो किसी साधारण स्टेटमेंट की बात कही जाती है या किसी फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है. लाइक दिस नेगेटिव सेंटेंस, अ नेगेटिव सेंटेंस स्टेट्स दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और इनकरेक्ट. A negative adverb has to be added in order to cancel or the validity of the sentence. Now we will discuss the formula of negative sentence. In present we will use subject plus do or does not plus first form of verb plus object. In past, firstly we will use subject plus did not plus first form of verb plus object. Guys, it is an important fact जो कि आप सभी लोगों को याद रखना है. The expressions want you, why don't seem negative but do the positive work because they are used to make invitation or offer. For example, why don't you join our political party? कहने का मतलब है कि पहले सेंटेंस का अर्थ है आप हमारे राजनीतिक दल में शामिल क्यों नहीं होते. नेक्स्ट सेंटेंस, वोंट यू स्टे हर फॉर द नाइट. क्या आप उसे रात पर नहीं रहने देंगे. इट मीन्स इन दोनों ही सेंटेंस में इनविटेशन या ऑफर किया गया है. यह देखने में तो नेगेटिव जैसे लगते हैं पर वास्तव में नहीं है. The next important fact is don't use hope in negative when there is any clause after it. For example, I don't hope it will rain today. यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें क्लॉज से पहले डोंट का यूज हुआ है. सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई होप इट विल नॉट रेन टुडे. इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हुआ है और नॉट को हम नॉट भी लिखते हैं और एब्रीवेशन फॉर्म में भी लिखते हैं. सो गाइस, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव एंड इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव.
डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्लेइंग, देन व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई. ये शब्द इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब से पहले यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग हियर. इस सेंटेंस में आर ऑक्सिलरी वर्ब है जिससे पहले व्हाट का यूज किया गया है. Now we will move toward indirect interrogative. The formula of indirect interrogative: subject plus verb plus object, first clause plus interrogative sentence, second clause. If interrogative sentence comes after assertive sentence, it will be called indirect interrogative sentence. For example, what is his name? उसका क्या नाम है. यह डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है. आई वॉन्ट टू नो वॉट इज हिज नेम. यह इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है. इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते. नेक्स्ट इज इम्परेटिव सेंटेंस. An imperative sentence is a type of sentence that gives advice or instruction or that express a request or command. जिन सेंटेंस में एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट की जाती है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेल्प द पुअर. इस सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है. नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का यूज करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. An exclamatory is a more forceful version of a declarative sentence. It conveys excitement or emotions. We use note of exclamations, the sentence which expresses some strong feelings, emotions such as sorrow, joy, surprise, wonder, etc. is called exclamatory sentence. जो सेंटेंस फीलिंग या इमोशंस को व्यक्त करते हैं वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज. द लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस डिजायर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. इट इज फॉर्मेड बाय यूजिंग मे, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज मे. जो सेंटेंस इच्छाओं और मनोकामनाओं को व्यक्त करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, एक्सेट्रा. सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and press the bell icon so that you will get all notifications of upcoming videos. Thank you so much.